प्रोफेसर सुधीर मल्होत्रा। इसके पहले कि मैं बोलूं, जो भी एक्टिविटी यहाँ पर कर रहा है वो करता रहे। आँख जहाँ पर भी है वहाँ पर चलती रहे, मुंह जहाँ पर नहीं है चलता रहे, मगर कान इस तरफ रहे। लिसन टू मी और रिग्रेट टुमारो। क्या हुआ यार? दैट इज माई मैसेज टू यू। इफ यू विश टू लिसन and do not want to regret tomorrow, just pay attention to what we are saying or discussing it. तो सबसे पहले यहाँ पर नंबर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नंबर के अंदर का ब्रेन इम्पोर्टेंट है। Whosoever is present can raise their hand if I ask a question. Should I go in English or Hindi or mixed? Mixed. Okay. So at the outset, I am thankful to Professor Vibhuti Rai, who is very close friend of mine. He has been at the Department of Geology over here, and he is almost 2 houses apart from my home. Professor Sudhir Mehrotra, who is HOD Biochemistry, a very dynamic person, who is here on the dais. Professor Rajiv Pandey, who is HOD of Statistics, because we are doing lot of medical research and we cannot go without biochemistry or without statistics. So we are bound together, rather glued together. We have chosen a topic with consensus: healthy lifestyle during and after COVID period. Since this is a science festival, I will not be talking anything abstract. Whatever I am talking to is related to science, but you all know all these facts. Only thing is you have to act like light source, so that if you gain some extra knowledge, you can deliver that knowledge to your family member, to your society, to your brothers, to your friends, so that you can contribute in saving your society and nation. अभी क्या है कि यहाँ पर कोई बोलेगा वर्ल्ड में कोरोना के कितने लोग हैं, कितने इस समय पेशेंट अब तक हो चुके हैं। लगभग 6 करोड़ 6 करोड़ 5 करोड़ 91 लाख। और जो डेथ है, ग्लोबल डेथ है, वो डेट इज अराउंड 3%, यानी कि 100 लोगों में से 3 लोग मर जाते। इन आवर इंडिया कितना हो रहा है? 91 लाख, और मर कितने गए? 1.2 लाख, यानी कि जो हम लोगों की मॉर्टेलिटी है वो कम है। एंड वी शुड अपलॉड फॉर दैट। व्हाई? कभी सोचा है आपने कि हमारे यहाँ कम लोग क्यों मर रहे हैं? अमेरिका, फ्रांस, इटली, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पर मॉर्टेलिटी रेट 8 to 10% है। इंडिया जहाँ पर बहुत कम फैसिलिटी हैं, वहाँ पर मॉर्टेलिटी पहले 3% थी, जो अब घट के 1.2% हो गई। मतलब 100 में से केवल 1 या 1.2 लोग मर रहे हैं। तो कुछ बात तो है हमने की हस्ती मिटती नहीं हमारी। हमारे इंडिया में कुछ कल्चर तो है, कुछ हम लोग यहाँ पर अपनी आदतों में शुमार तो करते हैं, लेकिन भूल गए हैं। What we have been doing previously, we are forgetting it and we are following the Western pattern. So we should come back. And one thing more I want to tell you, is the persons who are having diabetes, chronic renal disease, or having low immune status because of any condition, very young age, less than 10 years or more than 65 years, उनमें डेथ ज़्यादा हो रही है। तो हम जो यंगस्टर हैं, भले ही कोरोना से प्रभावित हो जाएं, मगर हम शायद अफेक्टेड नहीं होंगे, लेकिन हमारे मम्मी पापा, चाचा ताऊ, मामा मौसी, दादा दादी, if we want to wish to care for them, we need to know all these things and we need to take care. Before we go further about the healthy lifestyle, most of you are science students, you should know about 4 things. Number 1 is T cells. T cells are the cells found in the blood and responsible for immunity.
If T cells are active in your body, your immunity will be more. Then the next thing is stress hormone. अभी यहाँ बैठे हैं, स्ट्रेस पैदा हो रहा है, इनाम नहीं मिल रहा है, इनाम मिल जाए जल्दी घर चले जाओ, देर हो रही मम्मी डांटेगी। तो स्ट्रेस हार्मोन अगर पैदा होगा तो टी सेल के ऊपर असर डालेगा, टी सेल कम काम करेगी, इम्यून प्रोसेस कमजोर हो जाएगा। तो स्ट्रेस तो नहीं लेना किसी तरह का। तीसरी चीज समझनी है एंटीऑक्सीडेंट्स। बहुत सुनते हैं कि फल खाओ एंटीऑक्सीडेंट है, ये खाना खाओ इसमें एंटीऑक्सीडेंट है। ये होता क्या है? ये फ्री ऑक्सीजन रेडिकल हैं, ये बॉडी में होते हैं, बॉडी की सेल्स को मारते हैं, और अगर ये बढ़ जाते हैं और आपका अच्छा ऑक्सीजन लेवल है बॉडी में, तो ये फ्री रेडिकल अपने आप मर जाते हैं। तो जैसे आप एंटीऑक्सीडेंट का जो नेचुरल होता है वो विटामिन सी में, स्कॉर्बिक एसिड में होता है। डॉक्टर साहब बताएंगे बायोकेमिस्ट्री को, टोकोफेरॉल में होता है, विटामिन ई में होता है, बीटा कैरोटीन में होता है, विटामिन ए आप दे सकते हैं, सेलेनियम में होता है। दे आर नेचुरली फाउंड एंड मोरओवर यू हैव एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इन लाइकोपीन एंड xanthine जो फलों में होता है। तो तीन बातें समझनी है, टी सेल्स, स्ट्रेस हार्मोन, एंटीऑक्सीडेंट और सीआरपी। सीआरपी वो नहीं है पुलिस वाला, सी रिएक्टिव प्रोटीन। जो हमारे बायोकेमिस्ट्री के लोग हैं या जो हमारे साइंस के लोग हैं वो समझते हैं कि जब भी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो देयर इज इन्फ्लेमेशन, और उसमें सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ जाता है। तो इन चार चीज़ों का बैकग्राउंड लेके हम लोग चलते हैं। पहला टी सेल्स जो इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, दूसरा स्ट्रेस हार्मोन जो टी सेल का फंक्शन कम करता है, तीसरा एंटीऑक्सीडेंट जो सेल डेथ को प्रिवेंट करता है, और चौथा हमारा हो गया सीआरपी यानी कि सी रिएक्टिव प्रोटीन, जिससे हमको मालूम चलता है कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन है कि नहीं। तो आई बी विद यू फॉर अंडर 30 मिनट्स एंड वी टेल यू द सेम थिंग व्हाट यू आर नोइंग राइट अवे, बट यू डू नॉट फॉलो, एंड नाउ वंस यू हैव गॉट अ साइंटिफिक बैकग्राउंड इट इज ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। कोई दवा अभी आई नहीं है, कोई वैक्सीन बनी नहीं है, और जो हम आज सीखेंगे हेल्थी लाइफ स्टाइल, ये हेल्थी लाइफ स्टाइल जब कोरोना हमारा चला जाएगा तब भी हमको हेल्दी रखेगा। तो सबसे पहला साउंड स्लीप, कौन नहीं जानता साउंड स्लीप? गहरी नींद सोना। कितना सोना? पूरे दिन सोना, 18 घंटा सोना, 14 घंटा सोना। स्लीप फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने तय किया है कि 7 to 8 आवर्स स्लीप इज सफिशिएंट फॉर ऑल यंगस्टर फ्रॉम 18 years to 65 years. This can increase or decrease depending on the age. Now the question is, what should be the time to sleep? कब सोएं? Again, whatever I am saying, it is scientifically proven. The best time to sleep is 10 PM to 4 AM. 10 बजे रात को सो जाना है और सवेरे 4 बजे जगना है, यानी कि आपके 7 से 8 घंटे के अंदर ये पीरियड कवर होना है। एंड द स्लीप फाउंडेशन ऑफ इंडिया हैज कैटेगोरिकली टोल्ड, डायरेक्टेड, बेस्ड ऑन रिसर्च कि अगर 11 बजे के बाद आप सो रहे हैं देन यू आर डिप्राइविंग योरसेल्फ। अब स्लीप से होता क्या है? तो अभी ये हम लोग तो आज करते हैं मोबाइल में लगे रहते, रात का 1 बज गया, हेलो हाय हाउ आर यू, अभी मम्मी पापा सो गए हैं तो आप बात कर सकते हैं। सी ऑल द थिंग्स दैट डू हैपन, सो दैट शुड नॉट हैपन। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखें कि अपने को आगे, अभी तो जवान है ना, अभी तो जो चाहे तो करें, लेकिन जब हमारी उम्र में आप आओगे, मेरी एज इस समय 63 ईयर, आई कैन रिमूव माई मार्क्स, और 63 ईयर एज में मेरा पल्स रेट है 55। तो आप कहोगे आप तो अजगर हो, कछुआ हो, उनकी हार्ट रेट, जिसकी हार्ट रेट कम होती है उसकी बॉडी प्रोसेस, उसका हार्ट अच्छा होता है, बिकॉज यू हैव मेंटेन्ड इट। व्हाट द स्लीप डज, जब आप सोते हैं ना तो जो बॉडी में दिन भर स्ट्रेस की वजह से सेल्स की डेथ हो जाती है, दैट सेल रीजनरेट्स, rejuvenates. Stress hormones they go down
When stress hormone they go down, the T cell function improves and your immunity improves. So just by sleeping in time for 7 to 8 hours, and that too during the correct time, you can increase your immunity. And moreover, in the researches it has been seen कि अगर 3 दिन हम 5 घंटे से कम लगातार सोएं, तो एक दिन हम बगैर नहीं सोए रात बिताई, इसके बराबर इफेक्ट होता है। तो चलो एग्जाम आया कोई बात नहीं, किसी दिन सो लिए 5 घंटे, लेकिन लगातार जो 5 घंटे सोना है या बिल्कुल रात भर जगना है, दैट शुड बी अवॉइडेड। देन आफ्टर साउंड स्लीप एंड टाइम द नेक्स्ट इज एक्सरसाइज, ऑल ऑफ यू नो। नाउ द क्वेश्चन इज what is the effect of exercise as a science person? Whenever you are doing exercise, the WBC, the white blood cells, the T cells, the number increases. Since the number increases, the immune process, immunity increases. Number one. Number two, whenever you are doing exercise, then your stress hormone level goes down. Again, the function of T cell increases and your immunity increases. Then what? Then what should you do during exercise? क्या कर सकते हैं, सबको पता है। एंटी इंफ्लेमेटरी होता है फंक्शन, यानी कि जो सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है उसका लेवल कम हो जाता है। कोई भी इंफेक्शन, चाहे कोरोना हो, चाहे जॉइंट का हो, चाहे हार्ट का हो, CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन हर डॉक्टर लिखता है, बिकॉज वी वांट टू नो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। एंड इट हैज बीन प्रूवन दैट if you do proper regular exercise, your body level, the anti-inflammatory property increases and C-reactive protein goes down. So that is very important. Basically क्या है कि exercise से आपका body clean up होता है। कैसे होता है? जब exercise कर रहे होते हैं तो circulation बढ़ जाता है। Circulation बढ़ जाता है तो jet pump से जब घर साफ करते हैं तो घर का कोना कोना साफ हो जाता है। तो बॉडी के every nook and corner of the body, the blood reaches there, the T cell reaches there and cleans up the body from bacteria and the viruses. That is how the exercise is important. Now the question is, how much? World Health Organization has clearly defined 200 to 300 minutes per week should be the optimum. 200 minutes to 300 minutes per week, walking, running, jogging or any type of exercise in which your heartbeat is increasing. Then number two, WHO has also told that in 1 week, 2 days you should stretch your body and you should strengthen your muscle. 2 days. So that means 200 to 300 minutes per week, 30 से 40 मिनट रोज, और उसमें हफ्ते में 2 दिन आप बुलवर्कर करें या योगासन करें। सबसे अच्छा योगासन है प्राणायाम, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है, तो दैट शुड बी डन। देन नाउ द क्वेश्चन इज, आपने अपनी बॉडी में फिजिकल स्ट्रेंथ, कार्डियक स्ट्रेंथ बढ़ा लिया, वॉकिंग कर लिया। अब वॉकिंग कैसे करें जिसको हम कहें कि ये सही तरह से वॉकिंग है? अभी यहाँ टहल रहे हैं, टुकड़ रहे हैं, हजरतगंज में टहल रहे हैं गर्लफ्रेंड के साथ में, बॉयफ्रेंड के साथ में, तो उससे क्या वॉकिंग मान लेंगे? वॉकिंग मान लेंगे, उससे बिल्कुल मान लेंगे, लेकिन वो जॉय राइड होगी, वो टॉकिंग विद वॉकिंग, वो वॉकिंग अच्छी है। बिकॉज अभी जो हमारी पार्टिसिपेंट ने कहा कि साहब हमको स्ट्रेस फ्री रहना, वो क्यों जाना? अगर हम 2 लोग साथ चल रहे हैं और चलते चलते लय और ताल में गाना गा रहे हैं, जो वादा किया सो निभाना पड़ेगा, वो अच्छे लय से गा रहे हैं, तो हमारी वॉकिंग एडिक्वेट नहीं है। और चलते चलते अगर बात कर रहे हैं, सुनो आज उठेंगे, तो ये भी वॉकिंग गलत है। हम वॉक कर रहे हो और साथ में 10 मिनट का टॉक कर रहे हैं। वी कैन कंफर्टेबली टॉक बट शुड नॉट सिंग, विल नॉट बी एबल टू सिंग and we should be able to talk properly. That is the speed 5 to 6 किलोमीटर पर आवर। आप सबके मोबाइल में ऐप्स हैं, आप अगर बता देते ये सर हमने डाउनलोड कर रखा है, जिसके पास आईफोन है, हेल्थ ऐप है,
कितने स्टेप होने चाहिए पर डे यंग आदमी को? 10,000 steps per day. 10,000 steps per day. Normally, when you are doing normal activity, you are keeping mobile with you, 3 to 3.5 thousand steps हो जाते हैं पूरे. And out of these 10,000, 6,000 steps should be at stretch. So that is the thing. If you start it, then you will feel that yes, you are doing proper exercise. फिर आते हैं फूड पे. तो हो गया, नींद आ गई, एक्सरसाइज आ गई और खाना आ गया. अभी खाना क्या खा रहे हैं? तो सारे स्टॉल बने हैं और बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन सब कुछ मिल रहा है और सब पढ़ते हैं अखबार में ये ठीक नहीं है. तो अब ठीक है तो है क्या? न खाएं तो जिए कैसे? जंक फूड है सर, लेकिन न खाएं तो ये सर जिए कैसे? इनका तो यही भोजन है. हमारे घर में बच्चे हैं आपके जैसे, मंगाते हैं वहाँ स्विगी से, जोमेटो गोल्ड से. मेरा भी 1200 रुपये खर्च कर दिया कि आप पापा जोमेटो गोल्ड मेंबर बन जाओ और इसमें आपको वो मिलता है, 1 से 2 मिलता है. मैं भी हूँ लेकिन आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ, एक्सपायर होने का. तो अब सवाल ये आया कि व्हाट शुड बी द बेस्ट टाइम टू टेक फूड. ये हम नहीं कह रहे, ये हमारा ऋग्वेद कह रहा है, जो हजारों साल पहले कहा, जिसको आज वेस्टर्न दुनिया मान रही है और वेस्टर्न लोग फॉलो कर रहे हैं. Within 2 hours of sunrise, you should have breakfast. Within 2 hours of sunrise. अब सनराइज से किसी ने देखा होगा, मुझे पता भी नहीं, देखा ही नहीं होगा. तो 6 बजे अगर सनराइज हुआ है तो 8 बजे तक नाश्ता हो जाना है और नाश्ता हैवीएस्ट होना है और डिनर कब होना है? अगेन सिंप्लीफाई करता हूँ, विदिन 2 hours ऑफ सनसेट. कौन फॉलो करता है? पार्टी चलती रात में, अभी रात पार्टी है, रात में बाकी है, बात अभी बाकी है. तो हम लोग बीमार क्यों पड़ जा रहे हैं? हमारा यंगस्टर क्यों बीमार पड़ जा रहा है? इसीलिए पड़ जा रहा है क्योंकि वी आर नॉट फॉलोइंग. और जो ओवरवेट है यहाँ पर, ये ध्यान रखें कि अगर केवल इतना ही फॉलो कर लिया, इफ यू आर फॉलोड, यू आर टेकिंग योर मील्स विदिन 2 hours ऑफ सनसेट एंड सनराइज, योर वेट विल ऑटोमेटिकली डिक्रीज. Within 3 hours you should not take anything. चरना नहीं है चबर चबर, और 6 घंटे से ज़्यादा भूखे नहीं रहना. ये एक साइंटिफिक डेटा है, पब्लिकेशन है इसके ऊपर. अभी क्या आ गया कि बैलेंस फूड. अब बैलेंस फूड हम किसी को बताएंगे कैसे? मान लो हमारे भाई साहब 3 लोग बैठे, भैया जी इनके अंदर कोई क्वालिटी है, इनके अंदर कोई है, इनके अंदर कोई है, सब तीनों मिल जाएंगे तो एक अच्छी टीम बनेगी. So whenever you are taking food, simple formula is that you should take multi-colored fruits. That means you have to take oranges, guava, apple, banana, all the fruits. See, banana is rich in magnesium. The apple is rich in iron, calcium. So if you are taking all the fruits which are seasonal and regional, कश्मीर से वो ठप्पा लगा के मोहर और अल्फांसो आम मुंबई से भी खाना, जो यहाँ पे होता है वही खाना. और मल्टी-कलर्ड फ्रूट, मल्टी-कलर्ड वेजिटेबल, हरी पत्ते की सब्जी, आलू, प्याज, गोभी, लहसुन, चुकंदर, all the colors. If all the colors are taken in sabji and your fruits, you are taking balanced diet. Similar is the story with pulses. सब तरह की दाल खानी है. पंचमेल दाल खा लीजिए, बहुत अच्छा है. अदरवाइज यू कैन से कि आज अगर खाएंगे, कल उड़द खाएंगे, परसों मसूर खाएंगे, फिर मूंगी खाएंगे. सो ऑल द कंपोनेंट्स यू आर कवरिंग विद मंडी एंड मल्टीग्रेन फ्लोर. अब आजकल जो ज्वार, बाजरा, रागी, आप लोगों ने सुना नहीं होगा, गरीबों का भोजन कहते थे. अमेरिका में ये सुपर फूड कहलाता. अब ये सुपर फूड्स हो गए, ज्वार, बाजरा, जिसको हम खाने में शर्म समझते थे. एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ. जितना आप दूध में कैल्शियम, कहते हैं दूध पियो कैल्शियम आएगा, जितना दूध में कैल्शियम है उससे ज्यादा 3 गुना ज्यादा रागी में है. और जितना रागी में कैल्शियम है उससे 8 गुना ज्यादा सहजन में है. एंड सहजन वी आर नॉट ईटिंग, मोस्ट ऑफ द बंगाली पर्सन आर ईटिंग. So what you can do, you can add sesame leaves in your dal and eat it. It is tasty and you are having a lot of calcium. So that is how you can just adjust. You can tell others कि yes, that is how you can go for the balanced diet. अभी बात हो रही थी कि हमको क्या करना है, अपने को स्ट्रेस फ्री रखना है. हेल्दी एंड हैप्पी माइंड. हेल्दी एंड हैप्पी माइंड का क्या मतलब हुआ
कि वेन एवर आवर माइंड इज हेल्दी एंड वी आर हैप्पी, जैसे आप सब लोग हैं फेस्टिवल में, तो अगेन स्ट्रेस हार्मोन का लेवल कम है, स्ट्रेस हार्मोन का लेवल है, टी सेल का फंक्शन ज़्यादा है, बॉडी का इम्यून प्रोसेस अच्छा है। कहना बहुत आसान है कि हेल्दी और हैप्पी है। एग्ज़ाम पास में आता है, घर में कोई बीमार होता है, पैर में चोट लग जाती है, सर लोग नंबर नहीं देते, लड़के कहते हैं लड़कियों को नंबर ज़्यादा मिल जाती है, ऐसा ना हो कि इनके बाद में वाइवा में मेरा पड़ जाए। तो ऑल दीज थिंग्स आर इज देयर। तो एक कहानी छोटी सी ये है कि एक राजा ने बहुत बड़ी सभा बुलाई और कहा कि मुझे एक ऐसा मंत्र बताओ कि जिससे मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाएं और मैं जब भी परेशानी में हूं तो मंत्र काम आए। तो एक पंडित जी ने वो मंत्र लिख के उनको दे दिया, कागज में उन्होंने अपनी घड़ी के नीचे रख लिया। राजा के राज्य पर अटैक हुआ, राजा भागा आगे, राजा पीछे, उसके दुश्मन, और भागते भागते जब एक चट्टान पे पहुंचा तो आगे खाई थी। राजा क्या करे, परेशान। तो उसने कहा अभी बड़ी परेशानी की बात है। पंडित जी की याद याद आई, उन्होंने उसको चिट को निकाला, उसमें मंत्र लिखा था। मंत्र ओम नहीं लिखा था, मंत्र लिखा था दिस टू शैल पास, ये वक्त भी गुजर जाएगा। So that type of attitude, suppose we are running from the pandemic, तब राजा ने वापस उसके पास स्ट्रेंथ आई और वो लौट के उसने दुश्मनों को हरा के अपने राज्य में जब आ गया तो उसके ऊपर फूल बरसने लगे। राजा का मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया, सूरज चमका, वही मंत्र याद आया, दिस टू शैल पास। तो चाहे सुख हो चाहे दुख हो, the only constant thing is change, so that is there, and that should be the attitude in your life. If you are having some problem, just believe in it that this too shall pass and you will be healthy and happy. And always, whenever you are talking in your family, it should be healthy and happy atmosphere. मम्मी पापा लड़ाई करके बैठे हैं, जाके बीच में कुछ मजाक का कुछ छोड़ दीजिए। कहीं आज एक सर आए थे मेडिकल कॉलेज के KGM से, ये तो सर्जरी के, और बता रहे थे जने तो संतों वाली वाणी तो सर्जरी क्या करते होंगे। तो ऐसी ही बातें बताइए, माता पिता खुश होगी, कोई बात नहीं, तो कोई मैं तो सुनिएगा। उसके बाद में आपको भगवान ने बहुत सारी चीजें मुफ्त में दी हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। एक सनलाइट दी है, एक ऑक्सीजन दी है और एक पानी दिया है। आई विल टेल यू द सनलाइट ऑल ऑफ यू नो इज विटामिन डी। विटामिन डी, अब नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मच सनलाइट इज टू बी टेकन so that we should remain fair like them and we should have proper vitamin D. There is rule of 40. That means 40 days in a year. And how many Sundays are there in a year? 52. So if you are just sitting in sun on every Sunday and then 40 minutes a day with 40% body part exposed, 40 days in a year, 40 minutes a day with 40% exposure of body. If suppose you are not able to sit for 40 minutes in a day, sit for 20 minutes, increase the number of days to 80 days. You will have sufficient vitamin D for your full year. Now how you will calculate 40%? The persons who are in the medical field they can calculate, but आप लोगों के लिए यदि आपने कटी बांह की या स्लीवलेस कोई कुर्ता पहन रखा है, दोनों बांह खुली हैं, सर पे यदि बाल है और टोपी नहीं पहनी है, गंजी में टोपी नहीं पहनी है, और आपने अपने जीन्स को या बरमूडा पहन रखा है, घुटनों तक मोड़ रखा है, तो ये 40% एक्सपोजर हो गया। किस समय की धूप ले? 11 से 1 की, सवेरे 6 से 8 की धूप लेनी है। और आजकल तो आप अभी भी जा सकते हो, एंड व्हेनेवर यू आर सिटिंग इन सन, जस्ट सी टू इट योर फेस शुड नॉट बी टुवर्ड्स सन, अदरवाइज यू विल हैव सनबर्न। देन ऑक्सीजन, आई टोल्ड यू द फ्री रेडिकल्स, how you will take, so you have to do lung exercises, breathing exercises। बाबा रामदेव तरह तरह की चीजें बताते हैं। आप कुछ मत करिए, खूब गहरी सांस लीजिए, थोड़ी देर रोकिए और निकाल दीजिए।
आपका lung is like a balloon. If you are not inflating balloon every day and you keep it in your almirah, what will happen? The walls of balloon will stick together. चिपक जाएंगे दीवारें. फिर balloon फुलाएंगे तो balloon will burst. The same story is with lungs. If you are not inflating your lungs daily with a deep breathing, in due course, the alveoli of lungs, they will collapse, lot of secretion will be there, and then you will develop pneumonia. So that is how you have to tell to your parents, your elders, your oldies, your grandies, and to you also, that this is, and whenever you are taking deep breathing, the oxygen which is present 21% is going inside your lung. And from lung it is going to your blood, and through blood going to rest of the part of your body. So suppose करो free radical हमारा दूर भी पड़ा हुआ है, तो free radical हमारा destroy हो जाए. So in that way it is a free. It costs you nothing. So that is there, and the water. एक घर को साफ करना है और साफ करते करते पानी कम पड़ जाए, तो क्या पूरा घर साफ कर लेंगे? क्या घर ठीक से साफ कर पाएंगे? The same story is with the blood. If you are taking lot of fluid, your blood volume will be adequate to reach to every part of the body and clean up that area. So that is important. The persons who are dehydrated, less water intake, many students, many teachers have got habit of having less water. They have poor immune process, poor immunity. So that is there. And of needless to say, you should not have addiction of tobacco, drugs or alcohol. उससे होता कुछ नहीं है, थोड़ी देर की मस्ती है. बाकी अच्छा अब ये ना हो कि हाइड्रेशन के लिए बियर पी लो. कि साहब सर ने बताया कि बियर पी लो, बहुत अच्छा हाइड्रेशन है. थोड़ी सी मोहितो पी लो. मोहितो में तो पानी भी है और जरा सा मोहितो में 30 ml पड़ गया वोडका. तो होगा क्या कि इससे डायबिटीज हो जाएगी. आपका बॉडी का उस समय का वाटर जो आया है उसका दुगना लेके वो बाथरूम में निकल जाएगा. तो यू शुड नॉट डिपेंड अपॉन दैट. एक मंत्र मैं बताता हूँ, जितने भी लोग खाना खा रहे होंगे सुन लें. जितने बड़े आदमी हुए हैं, जितने बड़े आदमी आप सोच सकते हो, चाहे वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही क्यों ना हो, स्वामी विवेकानंद क्यों ना हो, या जो अंग्रेजी में जितने आप जारी हो गए, वो एक नियम फॉलो करते हैं, दैट इज सेवर्स. SAVERS. Savers. S stands for silence. In the morning when you are getting up, follow this mantra, that is savers. Silence. Silence for 5 minutes and fill your mind with positive thoughts. Before you are going to classes or anything, मान लो कि आपका माइंड है क्या? आपका माइंड बेसिकली ब्लॉटिंग पेपर. उस ब्लॉटिंग पेपर रोज सुबह नया होता है. उस ब्लॉटिंग पेपर को आप इस इंक से भिगो देते हैं, जब भीग जाता है तो दूसरी इंक डालते हैं तो वो ब्लॉटिंग पेपर में नहीं जाता, वो किनारे रह जाता. तो सपोज इन द मॉर्निंग टुडे आई हैव थॉट कि टुडे आई एम गोइंग टू टॉक टू एवरीवन विद स्माइलिंग फेस. दैट इज a thought you have thought in silence. So silence. Then A is affirmation. Like suppose you have taken one thought. Yes, I will talk to everyone with smiling face in a good nature. That is affirmation. V stands for visualization. आप विजुलाइज कर रहे हैं, घर से निकले, हमको किसी ने धक्का मार के तभी ऐसा कोई बात नहीं बेटा, आगे बढ़े. हमको साथी ने कुछ मान लो एक कमेंट पास किया, उसके तरफ देख के आगे बढ़ गए. See, you have to visualize you are going into the class, you are going into the lab, and something wrong happens, your teacher shouts at you, your peer shouts at you, even then you are stable. So if you are visualizing that, I am telling you, if you are doing it regularly, within 1 month, suppose anybody says to you anything in your lab or class, it is not going to affect you, and your mental level will be absolutely above the level, and your hormone level will be high. So that is E. Save. Then E is exercise we have talked about. Silence, affirmation, visualization. आपको आइंस्टाइन बनना है, विजुलाइज करिए, एक दिन बनना है, एफर्ट कीजिए. E is exercise, or you can say efforts. Whatever you are doing, you have to say thinking, visualizing. You have to put an effort over there, or else you have to do the morning exercise. Then, what is R? R is say work, exercise.